بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے سر مظہر کلیم صاحب کا عمران سیریز گولڈن ایجنٹ ان ایکشن۔ چارٹرڈ طیارہ ولنگٹن کی بجائے ایک اور کریمی ریاست راگن کے دارالحکومت آجین کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ عمران نے راستے میں ہی پائلٹ سے بات کر کے طیارے کو آجین لے کر جانے کا کہہ دیا تھا، چونکہ ولنگٹن کی نسبت آجین کا فاصلہ کنسٹانا سے کم تھا، اس لیے پائلٹ نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ آجین کے ایئرپورٹ پر جیسے ہی طیارہ اترا، عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایئرپورٹ سے باہر آیا اور پھر وہ بجائے ٹیکسیوں پر سوار ہو کر شہر میں جانے کے لوکل بس سٹاپ کی طرف بڑھ گئے۔ آجین کوئی بڑا شہر نہیں تھا، کیونکہ ریاست راگن ایک دیہاتی ریاست کہلائی جاتی تھی۔ یہاں پوری ریاست میں غلہ کاشت کیا جاتا تھا، اسی لیے یہاں کا ماحول بھی یکسر دیہاتی سا ہی تھا۔ لوکل بس سٹاپ سے عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ بس میں سوار ہوا اور پھر آجین کے ایک علاقے رامور میں جا کر وہ اتر گئے۔ یہاں مکانات فاصلے فاصلے پر بنے ہوئے تھے اور خالصتاً دیہاتی سٹائل کے ہی تھے۔ عمران پیدل چلتا ہوا ایک بڑے سے مکان کے سامنے پہنچ گیا، جو زرد رنگ کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا اور دوسرے مکانوں کی نسبت بڑا اور زیادہ شاندار تھا۔ باہر دو گھوڑے بھی بندھے ہوئے تھے۔ عمران نے آگے بڑھ کر پھاٹک کے ستون پر لگی ہوئی کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد سامنے نظر آنے والے برآمدے میں ایک آدمی نظر آیا، جو برآمدے سے اتر کر تیزی سے پھاٹک کی طرف بڑا چلا آ رہا تھا۔ اس نے آ کر لکڑی کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا پھاٹک کھول دیا۔ یس سر، اس آدمی نے حیرت سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہیمفرے سے کہو پرنس آف ٹھمپ آیا ہے۔ عمران نے کہا۔ پرنس آف ٹھمپ؟ اس نوجوان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم جا کر کہو تو صحیح، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آئیے اندر آ جائیے، نوجوان نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا، اور پھر وہ انہیں لے کر برآمدے سے گزر کر ایک بڑے ہال نما کمرے میں لے آیا، جہاں عام سی لکڑی کی بینچیں پڑی ہوئی تھیں۔ بیٹھیے، میں اطلاع کرتا ہوں، اس نوجوان نے کہا اور تیزی سے مڑ کر اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ ہیمفرے کون صاحب ہیں؟ صفدر نے کہا۔ یہاں کا معروف لینڈ لارڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گینگسٹر بھی ہے، اس سارے علاقے کا کنگ کہلاتا ہے۔ ایک بار ولنگٹن کے ایک جوئے خانے میں اس سے مڈبیر ہوئی تھی، ہنسا دلچسپ آدمی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور ٹھوس جسم کا چوڑے چہرے اور بھاری جھبڑوں والا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے قدیم ایکریمنس کی طرح سر پر ایک بڑا سا ہیٹ رکھا ہوا تھا، جینس کی پتلون اور اس پر چمڑے کی جھالر دار جیکٹ بھی اس نے پہنی ہوئی تھی۔ سائیڈوں میں ہولسٹر لٹکے ہوئے تھے، جن میں سے بھاری ریوالوروں کے دستے جھانک رہے تھے۔ دیکھنے میں وہ قدیم ایکریمی کاؤ بوائے فلموں کا ہیرو نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر صفاقی اور سختی کا تاثر انتہائی نمایاں تھا، چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں سانپ جیسی چمک تھی۔ کہاں ہے پرنس آف ٹھمپ؟ اس آدمی نے اندر داخل ہوتے ہی عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو تمہارا کیا خیال تھا کہ پرنس تمہارے اس پھٹیچر سے مکان میں ہوتا آئے گا، جہاں فرنیچر کی بجائے یہ لکڑی کی بینچیں رکھی ہوئی ہوں؟ ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی دیہاتی ریلوے اسٹیشن کے کسی تھرڈ کلاس ویٹنگ روم میں کھڑے ہوں، عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا۔ تو آنے والا بے اختیار اچھل پڑا۔ او تم پرنس، او میں نے تمہاری آواز پہچان لی ہے، ہیمفرے نے حیرت سے چیختے ہوئے لہجے میں کہا اور تیزی سے عمران کی طرف بڑھا۔ ارے وہیں رک جاؤ، تم واقعی ریلوے انجن کی طرح دوڑے چلے آ رہے ہو، اور اگر تمہارے بریک فیل ہو گئے تو بیچارہ پرنس قالین بن کر فرش پر بچھا پڑا ہوگا، عمران نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ تو ہیمفرے بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑا اور اسے جھپٹ کر عمران کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ ارے تم تو زندہ انسان ہو، نرم سے، میں سمجھا کہ تم لوہے کے بنے ہوگے، عمران نے کہا۔ اور ہیمفرے ہنستا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی شرمندگی کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ اس نے اپنی طرف سے عمران کو زور لگا کر بھینچا تھا، لیکن عمران کے چہرے کے تاثرات میں ہلکی سی تبدیلی بھی نہ آئی تھی۔ یہ مس جولیا ہے اور یہ میرے ساتھی، تفصیلی تعارف بعد میں اطمینان سے ہوگا، عمران نے کہا۔ تو ہیمفرے ہنستا ہوا عمران کے ساتھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے باری باری سب سے مصافحہ کیا، لیکن جولیا نے اس کے مصافحے کے لیے بڑھے ہوئے ہاتھ کے جواب میں ہاتھ بڑھانے کے بجائے صرف سر کو خم دے کر سلام کر لیا۔ ہیمفرے کا چہرہ تیزی سے بگڑنے لگ گیا تھا۔ مس جولیا نے دستانے نہیں پہن رکھے اور انہیں وہم ہے کہ اگر دستانوں کے بغیر انہوں نے کسی سے ہاتھ ملایا تو نامعلوم کون سے جراثیم ان کے ہاتھوں کے ذریعے ان کے جسم میں سرایت کر جائیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ہیمفرے کا بگڑتا ہوا چہرہ تیزی سے نارمل ہو گیا۔ او اچھا، تو یہ بات ہے، بہرحال آئیے میرے ساتھ، ہیمفرے نے کہا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ انہیں ایک انتہائی شاندار لیکن دیہاتی انداز میں سجے ہوئے کمرے میں لے آیا۔ یہاں صوفے موجود تھے اور شوخ رنگوں کا قالین بچھا ہوا تھا۔ یہاں وہ نوجوان بھی موجود تھا جو انہیں لے کر آیا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے جیک، اور جیک یہ ہیں پرنس آف ٹھمپ، وہی پرنس آف ٹھمپ جن کی باتیں میں تمہیں بتایا کرتا تھا، اور یہ ہیں ان کے ساتھی۔ ہیمفرے نے جیک سے عمران اور اس کے ساتھیوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ اور ڈیڈی، کیا یہ واقعی وہی پرنس آف ٹھمپ ہیں؟ آپ تو ان کی شاذوری طاقت اور پھرتی کے جو واقعات بتاتے ہیں، وہ تو جیک کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ارے یہ تمہارا ڈیڈی تو قدیم دور کا داستان گو لگتا ہے، ہاں دوسروں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جیک کا مسافے کے لیے بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ لیکن دوسرے لمحے جیک کے چہرے پر تکلیف اور پریشانی کے تاثرات نمودار ہوئے تو عمران نے مسکراتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ ہی کمرہ ہیمفرے کے کہکہے سے گونج اٹھا۔ اب دیکھا تم نے، اب معلوم ہوا کہ میں غلط کہتا تھا یا درست؟ تم سے علاقے کے سارے لوگ ہاتھ ملاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ تم نے بڑے بڑے فولادی ہاتھوں والوں کی ہڈیاں توڑ ڈالی ہیں، لیکن اب بولو، ہیمفرے نے ہنستے ہوئے کہا۔
वाकई डैडी, अब मुझे आपकी बातों पर यकीन आ गया है, जैक ने कदरे शर्मिंदा से लहजे में कहा। मैंने भी अपनी आदत के मुताबिक इसे पूरी कुव्वत से भेजा था, कोई और होता तो उसकी चीखें निकल जाती, लेकिन पता है क्या हुआ, उल्टा मेरे बाजुओं में दर्द होने लग गया और प्रिंस मुझे कहने लगा कि तुम इस कदर नर्म क्यों हो, हेम्फरे ने कहा और जैक बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। यकीन साहब का जिक्र खैर हो रहा है, मुझे तो मिलवाओ इनसे, इमरान ने बड़े मासूमियत भरे लहजे में कहा तो हेम्फरे और जैक दोनों बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े। बैठो प्रिंस, और आप साहिबान भी बैठे, मैं दरमियानी आदमी हूँ इसीलिए प्लीज़ माइंड ना करें। आप सब साहिबान के चेहरे बता रहे हैं कि आपको मेरी और प्रिंस की मुलाकात का तफसील का इल्म नहीं है। इनसे मेरा टकराव एक जुए खाने में हुआ था, जुए खाने में झगड़ा हो गया। मेरा हरीफ एक्रीमिया का मशहूर रेसलर था और उसने हस्ब आदत मुझे क्रॉसबो का चैलेंज कर दिया। मैंने भी चैलेंज कबूल कर लिया क्योंकि इस रियासत में कोई आदमी मेरे पंजे में पंजा डालकर उसे मामूली सी हरकत भी नहीं दे सकता था। बहुत बड़ी शर्त लग गई, मैंने अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया, लेकिन नतीजा ये हुआ कि इस रेसलर ने एक लम्हे में मेरा बाजू मेज़ पर लगा दिया। मैं तो गुस्से और नदामत से पागल हो गया। फिर इससे पहले कि जुआ खाना खून से भर जाता, प्रिंस दरमियान में आ गया और उसने मुझसे भी बड़ी शर्त लगाकर इस रेसलर को चैलेंज कर दिया। रेसलर ने बड़े हकारत भरे अंदाज में प्रिंस को धुतकार दिया, लेकिन प्रिंस ने शर्त की रकम दुगनी कर दी। ये इतनी बड़ी रकम थी कि मैं भी हैरान रह गया, मुझे अपना गुस्सा भूल गया। इतनी बड़ी रकम की शर्त शायद इस जुए खाने में पहले कभी ना लगी थी। रेसलर ने शर्त की भारी भरकम रकम की वजह से चैलेंज कबूल कर लिया। प्रिंस ने अपने साथी से रकम लेकर मेज़ पर रख दी और रेसलर को भी मजबूर किया कि वो भी नकद रकम मेज़ पर रखे। रेसलर ने मुझसे जो रकम जीती थी वो भी मेज़ पर रखी और अपनी सारी रकम भी, लेकिन प्रिंस की शर्त से फिर भी वो रकम कम थी। चुनांचे उसने जुए खाने के मालिक से उधार रकम लेकर उसे पूरा किया। सारा जुआ खाना इस मेज़ के गिर्द इकट्ठा हो गया। मुझ समेत सबको 100% यकीन था कि प्रिंस कोई पागल है, क्योंकि प्रिंस की जिसामत और उसकी जिस्मानी साख्त इस रेसलर के मुकाबले में हाथी और चूंटी जैसी थी। लेकिन जब इस रेसलर ने प्रिंस के पंजे में पंजा डाला और प्रिंस के बाजू को झटक कर मेज़ पर लगाने के लिए जोर लगाया तो रेसलर का जिस्म पसीने में नहा गया, उसका चेहरा बिगड़ गया, लेकिन वो प्रिंस के बाजू को एक इंच भी हरकत ना दे सका और सबकी आंखें हैरत से फट गईं। जब रेसलर पूरा जोर लगा चुका तो प्रिंस ने बड़े इत्मीनान से उसके बाजू को इस तरह मेज़ पर लगा दिया जैसे वो रेसलर का बाजू ना हो बल्कि किसी बच्चे का बाजू हो। इस रेसलर ने दंगा फसाद करने की कोशिश की, लेकिन जुए खाने का मालिक दरमियान में आ गया। प्रिंस ने दोबारा चैलेंज कर दिया और कहा कि इसकी रकम सिर्फ एक उंगली अगर रेसलर मरोड़ कर दिखा दे तो उसे दुगनी रकम उसे इनाम में मिलेगी। और रेसलर ने यह भी चैलेंज कबूल कर लिया, लेकिन रेसलर साहब अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद प्रिंस की चट्टान जैसी उंगली को ज़रा भी मरोड़ ना सका और फिर प्रिंस ने मेज़ पर पड़ी हुई इस कदर भारी रकम में से अपनी रकम उठाकर अपने साथी को वापस दे दी। मेरी रकम मुझे दे दी और बाकी रकम इस रेसलर को ये कहकर वापस कर दी कि वो एशियाई रियासत ढम के प्रिंस हैं और सिर्फ शौकिया मुकाबले करते हैं। मैं प्रिंस से इस कदर मुतासिर हुआ कि मैंने उन्हें यहाँ आने की दावत दे दी और प्रिंस यहाँ 2 रोज़ तक मेरे पास रहे। ये मेरा बेटा जैक इन दिनों अपनी माँ से मिलने गया हुआ था, इसीलिए ये उनसे ना मिल सका था। हेम्फरे ने इमरान के साथियों को पूरी तफसील बताते हुए कहा। कमाल है, इस कदर शाज़ोर आदमी था। नहीं भाई, उसने यकीनन कोई जादूगर वगैरह कर दिया होगा इस रेसलर पर। मैं कैसे मान लूँ कि इतने शाज़ोर रेसलर को कोई आम सा आदमी इस तरह शिकस्त दे दे। इमरान ने कहा तो एक बार फिर सब हंस पड़े। जैक, जाओ और शराब के अलावा कोई और मशरूब तैयार करके ले आओ। प्रिंस शराब नहीं पीता और यकीनन उसके साथी भी नहीं पीते होंगे, हेम्फरे ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वाह, तुम्हारी यादाश्त तो वाकई काबिले दाद है। अगर तुम इस रेसलर से यादाश्त का मुकाबला करते तो यकीनन जीत जाते, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और हेम्फरे एक बार फिर देहाती अंदाज में मुंह फाड़कर खिलखिलाकर हंस पड़ा। हेम्फरे, मेरी यादाश्त तो बेहद कमज़ोर है, लेकिन इसके बावजूद मुझे ये बात याद है कि तुमने एक बार बताया था कि तुमने यहाँ किसी लॉर्ड एरिक से अराजी का बहुत बड़ा किता खरीदा है। इमरान ने कहा तो हेम्फरे बेइख्तियार चौंक पड़ा। हाँ, मैंने कहा था। क्यों? हेम्फरे ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये लॉर्ड एरिक जिंदा है? इमरान ने कहा। हाँ, जिंदा है और यहीं इस रियासत में ही रहता है, हेम्फरे ने जवाब दिया। कंसाटा के शुमाल मगरिब में पहाड़ियाँ हैं जिन्हें एरिक पहाड़ियाँ कहा जाता है और वहाँ एक गाँव है जिसे एरिक फील्ड कहा जाता है। मुझे मालूम है कि वो पहाड़ियाँ और गाँव किसी लॉर्ड एरिक का है। क्या ये वही लॉर्ड एरिक है? इमरान ने कहा। हाँ, वो उसकी आबाई जायदाद थी, लेकिन वो तो उसने फ़रोख्त कर दी थी और किसी और लॉर्ड ने खरीद ली थी, हेम्फरे ने जवाब दिया। क्या तुम मुझे इस लॉर्ड से मिलवा सकते हो? इमरान ने कहा। खुलकर बात करो प्रिंस, तुम क्या चाहते हो? मैं यहाँ का किंग हूँ और लॉर्ड एरिक लॉर्ड होगा, लेकिन किंग हेम्फरे के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है और तुम मेरे दोस्त हो। बोलो क्या चाहते हो? लॉर्ड एरिक जो तुम चाहोगे वही करेगा, हेम्फरे ने सीने पर हाथ मारते हुए कहा। मैंने वो इलाका देखा है, मुझे वो बेहद पसंद आया है। मैं चाहता हूँ कि मैं उससे खरीद लूँ, लेकिन वहाँ कोई नहीं बताता कि उसे लॉर्ड एरिक से किसने खरीदा था। लॉर्ड एरिक से मिलकर ये मैं मालूम करना चाहता हूँ कि उनसे ये इलाका किसने खरीदा था, ताकि मैं उससे रब्ता करके उससे खरीद सकूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये बात तो लॉर्ड को फ़ोन करके भी उससे मालूम की जा सकती है, हेम्फरे ने कहा। नहीं, मैं उससे मिलना चाहता हूँ ज़ाती तौर पर। क्या तुम मुलाकात करा सकते हो? इमरान ने कहा। ठीक है, जैसे तुम चाहो, मैं खुद तुम्हारे साथ चलता हूँ, हेम्फरे ने कहा। उसी लम्हे 2 मुलाजिम ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुए। ट्रे में मशरूबात के जाम रखे हुए थे। सब ने एक एक गिलास उठा लिया। तो क्या हम सब चलेंगे या सिर्फ आप अकेले चलेंगे? हेम्फरे ने मशरूब पिए जाने के बाद इमरान से मुखातिब होकर पूछा। हम सब चलेंगे, क्योंकि इस मुलाकात के बाद हमने फौरी तौर पर वेलिंगटन जाना है, इमरान ने कहा।
तो क्या तुम लोग हमारे पास कुछ रोज़ नहीं ठहरोगे? हेम्फरे ने चौंक कर कहा। नहीं किंग हेम्फरे, फ़िलहाल नहीं, लेकिन मेरा वादा कि जब भी फुर्सत मिली मैं तुम्हारी मेज़बानी को ज़रूर आजमाऊंगा, इमरान ने कहा तो हेम्फरे बेइख्तियार हंस पड़ा। ओके ठीक है, आओ फिर चले, हेम्फरे ने उठते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वो एक बड़ी जीप में बैठे खेतों के दरमियान से गुजरने वाली सड़क पर आगे बढ़े चले जा रहे थे। जीप की ड्राइविंग सीट पर हेम्फरे था। तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद वो एक बहुत बड़ी महलनुमा इमारत में दाखिल हो गए। लॉर्ड एरिक बूढ़ा आदमी था। वो हेम्फरे से मिलकर बेहद खुश हुआ। चलो किसी बहाने तुम यहाँ तक आए तो सही, लॉर्ड एरिक ने तारुफ के बाद मुस्कुराते हुए हेम्फरे से कहा। जब मैं तुम्हारी तरह बूढ़ा हो जाऊंगा तो फिर आऊँगा, हेम्फरे ने कहा तो लॉर्ड एरिक बेइख्तियार कहा मारकर हंस पड़ा। लॉर्ड एरिक, आप एरिक फील्ड में कितना अरसा रहे हैं? इमरान ने पूछा। मैं तो पैदा भी वहीं हुआ था, मेरी जवानी का तवील अरसा भी वहाँ गुजरा है, लॉर्ड एरिक ने जवाब दिया। लॉर्ड एरिक, फिर आपने ये इलाका क्यों फ़रोख्त कर दिया? इमरान ने पूछा। क्यों फ़रोख्त कर दिया? यह अजीब सवाल है, माकूल कीमत मिल गई, मैंने फ़रोख्त कर दिया, लॉर्ड एरिक ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे एरिक फील्ड के बारे में बात करना पसंद ना हो। उसी लम्हे अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी और लॉर्ड एरिक ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, लॉर्ड एरिक ने तेज़ लहजे में कहा। हाँ किंग हेम्फरे यहाँ है, लॉर्ड ने दूसरी तरफ से बात सुनते ही कहा और फिर रिसीवर हेम्फरे की तरफ बढ़ा दिया। मेरा फ़ोन, अभी तो मैं आया हूँ, हेम्फरे ने हैरान होते हुए कहा और हाथ बढ़ाकर लॉर्ड एरिक के हाथ से रिसीवर ले लिया। यस हेम्फरे बोल रहा हूँ, हेम्फरे ने हैरत भरे लहजे में कहा। फिर जैसे जैसे वो दूसरी तरफ से होने वाली बातचीत सुन रहा था उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभरते चले आए। मैं आ रहा हूँ, सब लोगों को इकट्ठा करो, मैं उन्हें फना कर दूंगा, किंग हेम्फरे ने चीखते हुए कहा और फिर रिसीवर रखकर वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? लॉर्ड एरिक ने कहा। इस अहमक साइमन को मौत खींच लाई है, उसने आदमी इकट्ठे करके मेरे खेतों पर कब्जा करने की कोशिश की है, मैं उसे फना कर दूंगा। तुम प्रिंस यहाँ लॉर्ड के पास रहो, मैं इनका खात्मा करके वापस आऊँगा, हेम्फरे ने कहा। और फिर वो तेज़ी से मुड़ा और दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। आप थके हुए होंगे, कुछ देर आराम कर लें, फिर इत्मीनान से बातें होंगी, लॉर्ड एरिक ने कहा और इसके साथ ही उसने मेज़ पर रखी हुई घंटी उठाकर हाथ से बजाई तो दो नौजवान अंदर दाखिल हुए और सर झुकाकर खड़े हो गए। मेहमानों को मेहमान खाने तक ले जाओ और सुनो, जेफ को कह देना कि ये हमारे खास मेहमान हैं, उन्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लॉर्ड ने उठते हुए कहा और इमरान और उसके साथी भी उठ खड़े हुए। आप जाए, मैं लॉर्ड से चंद बातें करके अभी आ रहा हूँ, लॉर्ड आप मुझे चंद मिनट देंगे? इमरान ने अपने साथियों के साथ जाने की बजाय लॉर्ड से भी मुखातिब होकर कहा और उसके साथी समझ गए कि इमरान लॉर्ड से अलहदगी में बात करना चाहता है, इसलिए वो सब खामोशी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। आप कुछ देर आराम कर लेते, लॉर्ड ने मुहज़्ज़ब से लहजे में कहा। आपसे बातें करने से ही मुझे आराम मिलेगा, आप जैसे बुजुर्ग और तजर्बाकार आदमियों की सोहबत का एक लम्हा सदियों से भी ज़्यादा कीमती होता है, इमरान ने कहा। तो लॉर्ड के चेहरे पर यकलहत मुसरत की जगमगाहट होने लग गई। इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया क्योंकि लॉर्ड एरिक भी दूसरे लॉर्डों की तरह अपनी तारीफ सुनकर खुश होने का आदी था। आप मेरे साथ आए, मैं अपने खास कमरे में आपको लेकर चलता हूँ, लॉर्ड ने मुसरत भरे लहजे में कहा। और चंद लम्हों बाद वो एक इंतहाई शानदार अंदाज में सजे हुए कमरे में मौजूद थे। लॉर्ड एरिक माजरत करके बाथरूम चला गया तो इमरान ने इस कमरे का सरसरी नज़रों से जायज़ा लेना शुरू कर दिया। जायज़ा लेते हुए उसकी नज़रें दीवार पर लगे हुए एक फ्रेम पर पड़ी तो वो चौंक पड़ा। फ्रेम के अंदर एक सर्टिफिकेट लगा हुआ था जो हुकूमत यक्रीमिया की तरफ से लॉर्ड एरिक की हुकूमत के लिए खिदमत के सिलसिले में दिया गया था। उसी लम्हे लॉर्ड एरिक बाथरूम से बाहर आ गया। मैं माजरत हुआ हूँ प्रिंस, बढ़ापा बताते खुद एक बीमारी होता है, बाथरूम में मुझे बार बार जाना पड़ता है, लॉर्ड ने माजरत हुआ हाना लहजे में कहा। मेरी तो पसंदीदा जगह ही बाथरूम है, जिस कदर इत्मीनान और सुकून आदमी बाथरूम में महसूस करता है और किसी जगह कर ही नहीं सकता, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो लॉर्ड एरिक बेइख्तियार कहा मारकर हंस पड़ा। लॉर्ड एरिक, आपको हुकूमत यक्रीमिया ने हुकूमत के लिए शानदार खिदमत के एवज बाकायदा सर्टिफिकेट दिया है, ऐसा सर्टिफिकेट तो खास खिदमत पर ही दिया जाता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये कैसी खिदमत थी? इमरान ने दीवार पर मौजूद फ्रेम की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये इस दौर के किस्से हैं जब मैं जवान था, जवानी के दौर में मैंने एक ऐसी मुजरिम तंजीम के खिलाफ काम किया था जो हुकूमत यक्रीमिया के खिलाफ काम कर रही थी, इन खिदमत के सिले में मुझे ये सर्टिफिकेट दिया गया था, लॉर्ड एरिक ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन बुढ़ापे में आदमी अमली जदोजहद ना सही कम अज़ कम ज़हनी तौर पर जदोजहद कर सकता है, इमरान ने कहा। हाँ कर तो सकता है, लेकिन मुख्तलिफ बीमारियों ने मुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि मैं किसी से रब्ता कर सकूं, और कोई भी काम बगैर राब्तों के बहार हाल नहीं किया जा सकता, लॉर्ड एरिक ने जवाब दिया। और अगर राब्ता खुद आपके पास चलकर पहुँच जाए तो, इमरान ने कहा। तो लॉर्ड एरिक बेइख्तियार चौंक पड़ा। लॉर्ड एरिक, आप बुनियादी तौर पर एक अच्छे इंसान हैं, आपको ये सर्टिफिकेट बता रहा है कि आपने वाकई जराइम के खिलाफ बेमिसाल जदोजहद की होगी, क्योंकि इस किस्म का सर्टिफिकेट हुकूमतें बहुत कम जारी करती हैं, इसीलिए मैं आपको तफसील बता देता हूँ। इसके बाद आप खुद फैसला कर लें कि क्या आप ताउन कर सकते हैं या नहीं, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। कैसी तफसील? लॉर्ड ने और ज़्यादा हैरत ज़दा होते हुए कहा। तो इमरान ने उसे ब्लैक थंडर के बारे में मुख्तसर तौर पर बता दिया। ओ इस कदर खौफनाक तंजीम, लॉर्ड एरिक ने हैरान होते हुए कहा। और इस तंजीम ने एरिक पहाड़ियों में खुफिया लेबॉर्ट्री बनाई हुई है जहाँ पूरी इंसानियत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला हथियार तैयार किया जा रहा है, इमरान ने कहा। एरिक पहाड़ियों में ओ वेरी बैड, तो इसीलिए मुझे इतनी बड़ी रकम ऑफर की गई थी। मैं भी सोचता था कि कौन अहमक इस कदर हो सकता है कि इस वीरान से इलाके के लिए इतनी बड़ी रकम अदा करेगा, लॉर्ड एरिक ने हैरत भरे लहजे में कहा।
खुफिया लेबॉर्ट्री के लिए उन्हें ये जगह मुनासिब लगी होगी, रकम उनके लिए कोई मसला नहीं है, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन आप कौन हैं? हेम्फ्रे ने तो आपका तारुफ सिर्फ दोस्त कहकर कराया है, लेकिन आपकी बातें बता रही हैं कि आप हेम्फ्रे जैसे आम से गैंगस्टर के दोस्त नहीं हो सकते। लॉर्ड एरिक ने कहा, मेरा ताल्लुक पाकिशिया से है, मेरा असल नाम अली इमरान है, मेरा ताल्लुक पाकिशिया सीक्रेट सर्विस से है। हेम्फ्रे से मेरी मुलाकात काफ़ी अरसा पहले हुई थी, हम जुए खाने में मिले थे, वहाँ मैंने उसकी मदद की थी, इसीलिए इससे मुलाकात रहने लगी। एक बार बातों ही बातों में हेम्फ्रे ने आपका जिक्र किया। अब जबकि इस लेबॉर्ट्री की तलाश के सिलसिले में एरिक फील्ड और एरिक पहाड़ियों का नाम सामने आया तो ये मालूम हुआ कि ये जगह किसी लॉर्ड एरिक की आबाई जायदाद थी। तो मेरे जहन में हेम्फ्रे की इस वक्त की बात आ गई। चुनाचे मैं अपने साथियों समेत हेम्फ्रे के पास पहुंचा। हेम्फ्रे ने बताया कि आप जिंदा भी हैं और इसी रियासत में रहते हैं, तो मैंने उसे मजबूर किया कि वो मेरी मुलाकात करा दे। इस तरह आपसे मुलाकात हो गई। इमरान ने तफसील से सब कुछ बताते हुए कहा, ओ तो ये बात है, मेरा ताल्लुक भी आज से 8-10 साल पहले तक एक्रीमा की खुफिया एजेंसी से रहा है। गो वहाँ मेरा काम सिर्फ इंतजामी मामला तक ही महदूद था, लेकिन मैंने इस दौरान पाकिशिया सीक्रेट सर्विस और खास तौर पर आपके बारे में बहुत कुछ सुना था। मुझे बेहद खुशी है कि आपसे मुलाकात हो गई। मैं आपसे भरपूर ताउन करूँगा, लेकिन आप ये खुद बताएंगे कि आप मुझसे किस किस्म का ताउन चाहते हैं। जहाँ तक वो इलाका फ़रोख्त करने की बात है तो असल बात यह है कि इस इलाके में हमारी ख़ानदानी दुश्मनी वहाँ करीब के एक इलाके के जागीरदार से थी, इसी वजह से वहाँ कत्ल गारत का सिलसिला पता चलता रहता था। फिर अचानक जब मुझे बरतानिया के एक लॉर्ड की तरफ से इस सारे इलाके की फ़रोख्त के लिए बहुत माकूल बल्कि मेरे तसव्वुर से भी ज़्यादा रकम की ऑफ़र हुई, तो मैंने इसे फ़रोख्त कर दिया और उसकी जगह यहाँ इस रियासत में उससे भी बड़ी जागीर खरीद ली। इस तरह इस ख़ानदानी दुश्मनी से मेरी और मेरे ख़ानदान की खलासी हो गई। लॉर्ड एरिक ने तफसील बताते हुए कहा, आपकी जागीर दरअसल ब्लैक थंडर ने खरीदी है, इसके लिए रकम कोई मसला नहीं है, इसे वो पहाड़ियाँ लेबॉर्ट्री के लिए मुनासिब लगी होंगी। आपसे मैं सिर्फ इतना ताउन चाहता हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा खुफिया रास्ता बता दें जहाँ से मैं किसी की नज़रों में आए बगैर इन पहाड़ियों के अंदर पहुँच जाऊँ, कोई ऐसा रास्ता जिसका इल्म ब्लैक थंडर के एजेंटों को अब तक ना हो सका हो। इमरान ने कहा, ऐसा रास्ता मुझे तो ये सारा इलाका फ़रोख्त किए बहुत तवील अरसा गुजर चुका है, अब ऐसा कौन सा रास्ता हो सकता है जो उनकी नज़रों में ना आ सका हो। लॉर्ड एरिक ने कहा, आपका वो आबाई गांव था और बकौल आपके आप वहाँ पैदा भी हुए थे और आपकी जवानी भी वहीं गुजरी। ऐसे आदमी को ऐसे ऐसे रास्तों का इल्म होता है जिसका इल्म आम हालात में आम लोगों को नहीं हो सकता। मुझे ऐसे ही किसी रास्ते की तलाश है, क्योंकि ब्लैक थंडर बहुत बावसाइल तंजीम है, यकीनन उसने इस लेबॉर्ट्री की हिफाजत का इंतहाई आला तरीन इंतज़ाम किया होगा। इमरान ने कहा, हाँ यकीनन ऐसा ही होगा, लेकिन अरसा बहुत गुजर चुका है मिस्टर अली इमरान, इसीलिए हतमी तौर पर कोई रास्ता कैसे बताया जा सकता है। लॉर्ड एरिक ने जवाब दिया, आप बताएं तो सही, चेकिंग में खुद कर लूँगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर ऐसा है तो फिर मुझे अपने पुराने कागजात चेक करने पड़ेंगे। मैं इन पहाड़ियों पर लोमड़ियों का शिकार खेलता रहा हूँ और तुम जानते हो कि पहाड़ों में रहने वाली लोमड़ियों का शिकार किस कदर मुश्किल होता है। इसी सिलसिले में एक बार मैंने इन पहाड़ियों का बाकायदा नक्शा बनाया था और इस नक्शे में इन तमाम रास्तों की बाकायदा निशानदही की थी जिनसे गुजरकर मैं लोमड़ियों के ठिकाने तक खामोशी से पहुंच सकूं। जवानी के दौर की बात है, लॉर्ड एरिक ने जवाब देते हुए कहा, अगर वो नक्शा मिल जाए तो ये मेरे लिए सबसे कारामद होगा। इमरान ने कहा, मैं उसे तलाश करता हूँ, लेकिन आपको इंतज़ार की जहमत उठानी पड़ेगी। लॉर्ड ने कुर्सी से उठते हुए कहा, इसके लिए तो मैं महबूब के इंतज़ार की तरह क़यामत तक इंतज़ार कर सकता हूँ। इमरान ने जवाब दिया तो लॉर्ड एरिक बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा और फिर वो इस कमरे की अकबी दीवार में मौजूद एक दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर उसकी वापसी तकरीबन 1.5 घंटे बाद हुई। वो बेहद थका हुआ सा दिखाई दे रहा था। आपको मेरी वजह से तकलीफ़ उठानी पड़ी, लॉर्ड इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जराइम के खिलाफ काम करने का मुझे हमेशा दिली मुसरत महसूस होती है और मुझे तो इस बात की खुशी है कि इस उम्र में भी मुझे जराइम के खिलाफ किसी न किसी अंदाज में काम करने का मौका तो मिला। लॉर्ड एरिक ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर हाथ में पकड़ा हुआ एक रोल उसने खोला। ये पुराना कागज़ था, लेकिन बहरहाल वो इस कदर हंसता ना था कि फट जाता। लॉर्ड ने रोल को खोलकर मेज़ पर रखा और फिर इधर उधर से मुख्तलिफ सामान उठाकर उसने इसके चारों कोनों पर रख दिया ताकि वो दोबारा रोल ना हो जाए। ये वाकई एक नक्शा था जिसे हाथ से बनाया गया था। नक्शे का अंदाज बता रहा था कि बनाने वाले को नक्शा बनाने की तकनीक से खासी वाकफियत है, क्योंकि नक्शा हाथ से अच्छे अंदाज में बना हुआ था। पहाड़ियों को इसका लकीरों से बनाया गया था, जबकि रास्तों की निशानदही सुर्ख रंग की लकीरों से की गई थी। फिर लॉर्ड एरिक ने इमरान को पहाड़ियों और रास्तों के बारे में तफसील बतानी शुरू कर दी। ये रास्ता बहुत छोटा सा है, इस तरह तो ये लोमड़ी के शिकार के लिए काम नहीं आ सकता। फिर इसकी निशानदही क्यों की गई है? इमरान ने एक छोटी सी सुर्ख लकीर पर उंगली रखते हुए कहा, ठहरो, मुझे याद करने दो। फौरी तौर पर तो इसकी वजह तस्मिया मेरे जहन में नहीं आ रही, लॉर्ड एरिक ने कहा और इसके साथ उसने आंखें बंद कर लीं। उसकी पेशानी पर मौजूद शिकनों में इजाफा हो गया था। चंद लम्हों बाद उसने आंखें खोल दी। ओ याद आ गया, इसके आगे कुदरती कुआं है, काफ़ी गहरा कुआं। ये देखो, ये मैंने निशान बनाया है। कुआं इस लिहाज से कि ये कुएं की तरह गोल गहराई है, वरना इसमें पानी वगैरह नहीं था। इस कुएं के मुंह पर मैं अक्सर जाल लगा दिया करता था और लोमड़ी इस कुएं में गिर जाती थी। लॉर्ड एरिक ने जवाब दिया, कितना गहरा है ये? इमरान ने पूछा, 60-70 फुट गहरा तो होगा, मेरा अंदाज़ा है, लॉर्ड एरिक ने जवाब दिया। और ये रास्ता तो यहाँ काफ़ी दूर से निकल रहा है, लेकिन आपने दरमियान में ये क्रॉस डाल दिया है, इसका क्या मतलब है? इमरान ने कहा,
یہ راستہ ان پہاڑیوں سے تقریباً 2 کلومیٹر دور ایک زمینی سرنگ ہے، لیکن جہاں میں نے کراس ڈالا ہے یہاں یہ بند ہے۔ دوسری طرف سے بھی راستہ ہے لیکن راستے میں بلاکنگ ہے، لارڈ نے کہا۔ اوکے لارڈ ایرک، آپ نے واقعی بے حد تعاون کیا ہے، میں اس کے لیے آپ کا ذاتی طور پر مشکور ہوں، اور اب مجھے اجازت دے کہ میں یہ نقشہ ساتھ لے جاؤں، یہ میرے لیے بے حد کارآمد ہے، عمران نے کہا۔ بے شک لے جائیں، لیکن اجازت ایک شرط کے ساتھ کہ آپ اپنے اس مشن میں کامیابی کے بعد دوبارہ میرے مہمان ضرور بنیں گے، لارڈ ایرک نے کہا۔ تو عمران نے وعدہ کر لیا۔ ہم فوری طور پر اس ریاست کے بڑے شہر لارک فیلڈ پہنچنا چاہتے ہیں، کیا اس کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، میرے پاس جیپیں بھی ہیں اور ڈرائیور بھی، وہ آپ کو پہنچا دیں گے، لارڈ ایرک نے کہا، اور پھر وہ عمران کے ساتھ اس کمرے سے باہر آ گیا۔ عمران نے نقشہ طے کیا اور پھر اسے جیب میں ڈال لیا۔